Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to lecture number 10 for global business management. And आज कोशिश करेंगे समझने की कि इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी क्या है और इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स और उनके बारे में डिफरेंट फिलोसफीज and at the end of chapter we will try to discuss implications for managers. So let's start. International trade theory basically explains why it is beneficial for countries to engage in international trades. तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है इसके ट्रेड क्रिएट्स वेल्थ, बट इसके साथ कुछ लूपहोल्स भी हैं, कुछ ग्रे एरियाज भी हैं, एंड देन वी हैव टू कंसिडर सम लीगल लोकल एंड इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस, उनको भी स्टडी करना ज़रूरी है. एंड एट governmental level or national level, of course, it helps governments to develop economic policy for the country. And pattern of international trade can be identified through international trade theory. Yes, right now, flow of goods and services and reference to investment क्या situation है, वो overall as a single economy of the globe as well as नेशनल लेवल पे क्या स्टैंडिंग है हर मुल्क के हिसाब से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी. So let's try to understand what is our understanding about free trade. Ideally, this will be a situation कि across the board, across the borders, governments ने अगर zero नहीं तो almost near to zero restrictions लगाई हो for the movement of finished product and services as well as factors of production from one point to another. But again, ideally शायद ये idealistic approach तो हो सकती है, लेकिन ground reality is of course different. और मुल्क ने अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ ना कुछ गाइडलाइंस, टैरिफ्स, बैरियर्स ज़रूर खड़े किए हुए हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में हैं उसके. सो लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई situation where a government does not attempt to influence through quotas or duties what its citizens can buy from another country or what they can produce and sell to another country. So simply put, quotas and tariffs again ये barriers ही हैं, monetary barriers and non-monetary barriers की classifications में आ जाएंगे. Over the period of time, international trade theory evolved कैसे हुई है, तो mercantilism के accordingly, that was according to 16th and 17th century. Basic objective was to encourage the export of the products as compared to import of the products. At the time, idea was कि हर प्रोडक्शन कैपेसिटी को enhance करे और maximum exports oriented services and products पे focus करे, and at the same time it should discourage the import bill of a country. So 1776 में Adam Smith, while he was developing his concept within a book that is Wealth of Nations, तो उसके अंदर उसका आइडिया था कि जो प्रोपोगेट किया दैट वाज फ्री ट्रेड को फ्लरिश होना चाहिए. अब जैसे आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि फ्री ट्रेड को इनकरेज करने का क्या मतलब है कि ना कोटास बैरियर हों, ना ट्रेड टैरिफ्स बैरियर्स हों, ना कस्टम्स हों, ना ड्यूटीज़ हों, बट फ्री फ्लो ऑफ द सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए. एडम स्मिथ के काम को फर्दर रिफाइन किया था 19th सेंचुरी में डेविड रिक्टरो ने. स्मिथ के आइडियाज़ को फर्दर लेके चला था, एंड फिर 20th सेंचुरी में फर्दर रिफाइनमेंट लेके आए थे Alhazer and Bertil Olian. So let's see, and this is a historical perspective on international trade. So why it is beneficial for countries involved in international trade? Of course, international trade allows countries to specialize in manufacturing and export of products then that can be produced more efficiently in that country, and import products then can be produced more efficiently in other countries. Simply put, पाकिस्तान के पास resources और capabilities हैं ज़्यादातर agriculture related products से, जो अभी तक हमारा मेजर डिपेंडेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी रहा है नेशनल लेवल पे, दैट इज़ एग्री बेस्ड इकोनॉमी पे हम लोग. तो उस सूरत में अगर पाकिस्तान डिसाइड करता है, जैसे कि शौकत अजीज साहब के टाइम में डिसीजन हुआ था कि पाकिस्तान विल ट्राई टू बिल्ड इट्स ओन इंडिजिनस कार, जिसको पाक वन का बिलीफ नाम दिया गया था, तो दैट वाज हिलेरियस अटेम्प्ट एट
government and planners who wanted to execute it. That was more or less like a political stunt rather a historical comparison. तो फिर आप जानते हैं कि ऑटोमोबाइल में इस वक्त जो है जापानीज एंड अमेरिकन की ज़्यादादारी है, तो अब अगर पाकिस्तान में गाड़ी बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी एंड फीचर्स वो नहीं होंगे, प्राइस टैग भी ऑफ कोर्स बड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे मुल्क। तो जिस मुल्क के पास ज़्यादा स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ हैं वो उसी सेक्टर में अपने आप को फ्लरिश करे, उसी के अंदर चीज़ें बनाए और फिर बाकी जो है वो इम्पोर्ट करता जाए। So it is beneficial for a country to engage in international trade, even for product it is able to produce for itself. So this is not the notion कि सिर्फ वही चीज़ों पर फोकस करे, बट रादर जो बना सकता है तो कंपैरेटिव एडवांटेज वो देख ले। बनाने में तो बना सकता है पाकिस्तान की गाड़ी, लेकिन उसका जब आप कंपैरेटिव एडवांटेज करेंगे विद जापानीज ऑटोमोबाइल और अमेरिकन मार्केट्स, तो वहाँ पे यू विल रियलाइज के क्वालिटी वाइज, फीचर्स वाइज एंड कॉस्ट वाइज ऑफ कोर्स हम ट्रेड ऑफ कर रहे होंगे। तो लॉजिक से इसके बजाय आप अपने रिसोर्सेज को डिप्लीट करें, यू शुड ट्रेड विद कंट्रीज जहाँ से आपको प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। Now let's try to identify कि पैटर्न क्या आ रहा है ट्रेड का। Some patterns of trade are fairly easy to explain. Likewise, it is obvious why Saudi Arabia exports oil and Ghana exports cocoa and Brazil exports coffee. अब यहाँ पे जो है वो मैन मेड एडवांटेज की बात है एंड गॉड गिफ्टेड एडवांटेज की बात है। गॉड गिफ्टेड इन अ सेंस कि अगर ब्लैक गोल्ड या ऑयल वाज डिस्कवर्ड इन सऊदी अरेबिया तो यस एक्सप्लोरेशन के लिए भी सऊदी Arabia was dependent on Western countries to explore and process the oil, but again that was located in Saudi Arabia. तो OPEC का इस वक्त सबसे बड़ा जो मेंबर है that was Saudi Arabia right now, right? तो उसके अंदर तो ये गॉड गिफ्टेड एडवांटेज है। घाना के जो क्लाइमेट है या ब्राज़ील की जो टोपोग्राफी है दैट इज सूटेबल फॉर द रेलेवेंट प्रोडक्ट्स, ये गॉड गिफ्टेड एडवांटेजेस हैं। लेकिन जो मैन मेड एडवांटेजेस हैं, ये बेनिफिट्स हैं, इनको थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा। Likewise, why Switzerland exports chemical, pharmaceuticals, watches and jewelry? Why does Japan export automobiles, consumer electronics and machine tools? तो जो second component है that is man-made advantage, इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा as compared to it. So let's try to identify the pattern of international trade with reference to the historical developments. So record theory of comparative advantage, that is existing trade patterns are related to difference in labor productivity. तो record की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जनाब आप सिर्फ उस सूरत में बेनिफिट ले सकते हैं जब आपके पास जो लेबर है वो हाईली स्किल्ड है, हाईली ट्रेंड है, उसके पास रिक्वायर्ड टूल्स एंड एक्सपर्टीज हैं। उस सूरत में आप अपने आप को कंपैरेटिव एडवांटेज में फ़ायदा ले सकते हैं, जो लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो उसके अंदर है। ऑयलैंड का कहना है कि एक्सप्लेन ट्रेड थ्रू द इंटरप्ले between the proportions in which the factors of production are available in different countries and the proportion in which they are needed for producing particular goods. यहाँ पे अब एक दूसरा कंपोनेंट आ गया आपकी वर्कफोर्स के साथ, दैट इज आपके रिसोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल हैं। अगेन उसके अंदर मिनरल्स हैं, एनर्जी है, मैन मेड रिसोर्सेज हैं, ये सारे आ जाएंगे। वेयर एज वेन जो आइडेंटिफाई किया था देयर वाज ट्रेड पैटर्न could be explained by looking at a product life cycle. अब ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस क्या हैं। अभी से एक समरी दे देता हूँ। लाइकवाइज वी हैव R&D स्टेज, after that we have introduction stage, and then we have growth stage, then followed by maturity and decline and out of business. So it's kind of a parabola जो बनता है। तो इंटरैक्टिव सेशन में ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको ज़रूर बताऊंगा और फिर मैं आप रिलेट करने की कोशिश करूँगा कि हर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हर स्टेज पे आप कैसे कंपैरेटिव एडवांटेज गेन करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, government developed new trade theory, that was the world market can only support a number of firms in some industry. इसके पीछे जो एक रीज़न है कि ये जो रिसोर्सेज हैं नेचुरली या गॉड गिफ्टेड रिसोर्सेज, दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। तो उसके अंदर कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेक्टर सिर्फ एक मखसूस हद तक सप्लायर्स को सपोर्ट कर सकता है या ट्रेड को सपोर्ट कर सकता है। अगर एक्सेसिव डिप्लेशन होनी शुरू हो जाएगी तो ओवरऑल ही पूरी इंडस्ट्री पर सफ़र करना शुरू कर देगी।
Trade will skew towards those countries that have firms that were able to capture first mover advantage. अब ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज कह जी कि आप पहली बार कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ जाए जो उससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, रेडिकुलस इनोवेशन को यूटिलाइज करते हो आप ले आए, ठीक है, या आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर ही इतनी ज़्यादा इनोवेशन कर लें कि वो भी आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज दे दे। फर्स्ट मूवर एडवांटेज सिंपली मीन्स कि आप सबसे पहले कोई ब्रैकेट आइडेंटिफाई करते हैं, उसको कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। आप दूसरे शहर में, दूसरे मुल्क में, दूसरे कॉन्टिनेंट में ये कर सकते हैं। So Michael Porter focused on importance of country factors to explain a nation's dominance in production and export of certain products. Michael Porter again जो चीज आइडेंटिफाई की थी दैट वाज कि नेशनल कंट्री टू कंट्री फैक्टर्स डिफर करेंगे, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस ऑफ दोज फैक्टर्स जो यूनिवर्सल इन नेचर है। तो वहाँ पे फिर वो डिसाइड करेगा कि आपके मुल्क में कौन सी चीज़ बनेगी, कौन सी चीज़ इंपोर्ट होगी, किस क्वांटिटी में होगी। अब गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी को जब डेवलप करने की कोशिश कर रही होती है तो उस सूरत में देन वी हैव टू रियलाइज कि इंटरनेशनल ट्रेड एक डायनामिक, इंटरएक्टिव और सपोर्टिव प्रोसेस है। ये आइसोलेशन में नहीं कोई गवर्नमेंट कर सकती, विच मीन्स कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न वन, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकती हैं। ये दोनों सूरतों में हो सकता है। Suggest that trade is beneficial, they lack agreement in their recommendation for the government policy. So mercantilism makes a case for government involvement in promoting exports and limiting exports. The mercantilistic that was in 16th and 17th century, जिनकी understanding थी कि export will create wealth, as per their understanding government को सिर्फ और सिर्फ exports को encourage करना चाहिए और imports को रोकना चाहिए। Whereas Adam Smith, Record and Oehlen promote unrestricted free trade. तो अब यहाँ पे दो ओपिनियंस आ गए। एक सेट ऑफ इकोनॉमिस्ट की अंडरस्टैंडिंग है कि आप इंपोर्ट्स को लिमिट करें, एक्सपोर्ट्स को इन्हांस करें, वेरएज जो दूसरा सेट है उसका कहना है कि आप ना मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी दोनों सूरतों में कोई बैरियर्स खड़े ना करें ट्रेड के लिए। न्यू ट्रेड थ्योरी एंड पोर्टर जस्टिफाइड लिमिटेड एंड सिलेक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो एक तीसरा जो नैरेटिव आया माइकल पोर्टर ने जो सजेस्ट किया था कि लिमिटेड हो। अब यहाँ पे आप जरा पॉलिटिकल इकोनॉमी वाला चैप्टर याद कर ले लेक्चर, तो उसके अंदर मैंने बात की थी कि हमारे पास तीन किस्म के इकोनॉमिक सेटअप्स हैं। इधर वी हैव कमांड इकोनॉमी, वी हैव कंबाइंड इकोनॉमी एंड वी हैव फ्री इकोनॉमी या मार्केट आप इसको कह सकते हैं। तो माइकल पोर्टर के जस्टिफिकेशन जो है कि सेलेक्टिव इंटरवेंशन ज़रूर करें और उसके पीछे भी इंटेंशन कंट्रोल की नहीं होनी चाहिए बट मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग की होनी चाहिए। mercantilist, अब आ जाए डिटेल में देख लेते हैं। It is in a country's best interest to maintain a trade surplus, that is to export more than it imports. हमारे यहाँ पे तब ये आप सुन रहे होंगे पिछले 4-5 महीने में शायद बड़ी खबर चली थी कि हमारा ट्रेड डेफिसिट अब जो है वो जीरो पे आ गया, विच सिंपली मीन्स कि पहले जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था कि इंपोर्ट्स हमारी ज़्यादा थी एंड एक्सपोर्ट्स हमारी कम। तो गैप जो एग्जिस्ट कर रहा था दैट वाज बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू फ्लाइट ऑफ कैपिटल, स्पेशली जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो डॉलर की शक्ल में बाहर जा रहा था। तो येस इट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन उसका फिर इम्पैक्ट हमारी लोकल मार्केट ने बहुत सफ़र किया। It advocates government's intervention to achieve a surplus in balance of trade. It is viewed trade as a zero-sum game. Now, zero-sum game means one in which a gain by one country results in a loss by another. So mercantilism is problematic and not economically viable as compared to today's dynamic environment. Yet many political views today have the goal of boosting exports while limiting imports by seeking only selective liberalization of trade. Now let's try to understand एक ideal situation एडम स्मिथ के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि इनविजिबल हैंड शुड डिसाइड कि आपके मुल्क में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होना चाहिए। बट mercantilistics बिफोर एडम स्मिथ एडवोकेटेड कि उसके अंदर आपकी सिलेक्टिव लिबरलाइजेशन ट्रेड,
आप इसके अंदर अपनी इन्फेंट इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने करते हैं. Again, interactive lesson में I will try to explain के what is our understanding by इन्फेंट इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट्स क्यों मजबूर हो जाती हैं कि उन इन्फेंट्स इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कुछ सब्सिडीज दी जाती हैं, बेल आउट पैकेजेस दिए जाते हैं. तो इसको हम इंटरेक्टिव सेशन में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्सोल्यूट एडवांटेज, दैट इज गॉड गिफ्टेड एडवांटेज. As per Adam Smith, 1776, countries differ in their ability to produce goods efficiently. A country has an absolute advantage in the production of a product when it is more efficient than any other country in producing it. So according to Smith, trade is not a zero sum game. तो zero sum game क्या था कि एक मुल्क को फायदा होगा दूसरे को लॉस हो जाएगा. तो एडम स्मिथ एडवोकेट्स कि ट्रेड कभी भी ये एक मुल्क को फायदा नहीं करेगी, बट रादर जितने भी मेंबर्स उसके अंदर इन्वॉल्वड है ट्रेड के अंदर, उनके लिए विन विन सिचुएशंस है. सो कंट्रीज शुड स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर विच दे हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेज and then trade those goods for the goods produced by other countries. पाकिस्तान टेक्सटाइल में एडवांटेज है. पाकिस्तान को टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, और जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, वो हमारी कैपेबिलिटीज नहीं है, तो वो हमें इंपोर्ट करना चाहिए. Now let's try to understand absolute advantage with reference to example of two countries. So assume that the two countries, one is Ghana and one is South Korea. Ghana is going to produce coca, whereas South Korea is going to produce rice. For the sake of understanding of this example, absolute advantage और number of units, ये जो factors of production है, ये कितने इस्तेमाल होंगे. Assume that two countries, Ghana and South Korea, both have 200 units of resources that could either be used to produce rice or coca. So both countries के पास एक ही जितने units of resources हैं, that is 200. अब लॉजिक से इसके घाना को कॉफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए क्योंकि उसके पास एक्सपर्टीज़ हैं, उसके पास गॉड गिफ्टेड रिसोर्सेज हैं, जो क्लाइमेट है वो सूट करती है कोको को. एंड साउथ कोरिया शुड गो फॉर राइस, बट ज़रूरत दोनों मुल्कों को दोनों कमोडिटीज़ की है. साउथ कोरिया को चावलों के साथ कॉफ़ी की भी ज़रूरत है, एंड सेम इज़ द केस विद घाना. तो अब सिचुएशन क्या डेवलप होगी. इन घाना इट टेक्स 10 units of resources to produce 1 ton of coca and 20 units of resources to produce 1 ton of rice. So Ghana could produce 20 tons of coca or no rice, or 10 tons of rice and no coca, or some combination of rice and coca between two extremes. ये तीन situations आएंगे. तो logic says कि Ghana should go for coca production, whereas in South Korea, it takes 40 units of resources to produce 1 ton of coca and 10 resources to produce 1 ton of rice. So South Korea would produce 5 tons of coca or no rice, 20 tons of rice and no coca, or some combination within the range. So Ghana has an absolute advantage in the production of coca, and South Korea has an absolute advantage in the production of rice. Reason being कि ये दोनों जो हैं सबसे कम resources को इस्तेमाल करते हुए maximum amount produce कर सकते हैं दोनों countries. So that will be known as absolute advantage. Now let's try to understand कि अगर ये trade नहीं होती दोनों मुल्कों के दरमियान. So without the trade, Ghana would produce 10 tons of coca and 5 tons of rice. So South Korea would produce 10 tons of rice and 2.5 tons of coca by utilizing 200 units of resources जो उनके पास available है. If each country specializes in the product in which it has an absolute advantage and trade for the other products, so Ghana would produce 20 ton of coca and South Korea would produce 20 ton of rice. So ideally, by utilizing 200 units, दोनों के पास 20 ton of coca and rice आ गए. Now it's going to be interesting कि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे तो दोनों के साथ win-win situation कैसे आएगी. Now let's try to suppose Ghana could trade 6 tons of coca to South Korea for 6 ton of rice.
So after trade, Ghana would have 14 tons of coca left and 6 tons of rice, whereas South Korea would have 14 tons of rice left and 6 tons of coca. So after the execution of trade, both countries gained from this trade. तो वो जो जीरो सम की अंडरस्टैंडिंग थी कि एक मुल्क को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा, वो यहाँ पे नेगेट हो जाती है विद रेफरेंस टू एब्सोल्यूट एडवांटेज. I will stop this lecture here. इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. टिल देन अल्लाह हाफिज़.